Hello friends, welcome to the channel. Today we are going to cover very important American drama, that is The Contrast by Royal Tyler. Before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel, and in future you can connect us to get the notes of this subject too. Always write about the writer first. Royal Tyler. Do remember the birth and death year if you can. He was an American playwright, jurist, and author known for his contributions to early American literature and theatre. This all you need to write initially for any question that you get for this particular play. This is a 1787 play. Let us go for the introduction first. The Contrast, as you know, written by Royal Tyler, American play in tradition of English Restoration comedies. English Restoration comedies, many of you must be knowing about it. I do have a separate video about it. If you are not able to find it, let me know. I'll provide you the link in description. English Restoration comedies को जानना बहुत ज़रूरी है इस play के लिए. It takes a cue from Sheridan's play The School for Scandal. उससे काफ़ी मिलता जुलता है. A British comedy of manners that had revived the tradition a decade before. Restoration की tradition भी लगभग इससे 10 या 11 साल पहले आई थी इस particular play से. Royal ने वही traditions use की हैं. He uses the form to satirize Americans who follow British fashion and indulge in British vices. अपने आप को जो Americans ब्रिटिश की तरह पोर्ट्रे करना चाहते हैं उनके अगेंस्ट एक सटायर है. Thus the play is often concerned with portraying the contrast between European and American culture, and this is what is the theme of this play too. Let us know the name of the important characters: Charlotte, Letitia, Mr. Billy Dimple, Maria Venro, Colonel Henry Manley, Venro, Jessamy, Jonathan and Jenny. We will understand all these characters and their relationship, and we will understand the story also with the help of these characters only. You will get in that way the story very clearly. At present, let us know these four characters. Maria, at present engaged to Billy Dimple, but later on she will fall in love with Colonel Henry Manley, and Van Rogge is the father of Maria. प्लॉट की सेटिंग न्यूयॉर्क सिटी की है. प्लॉट कॉमेडिक है. एट द सेंटर इज Maria Van Rogge, who is settled to marry Billy Dimple. Billy Dimple, by an agreement between the two fathers who were the business partners. So father of Billy Dimple and father of Maria, that is Van Rogge, they were business partners and they had set up this marriage prior to Dimple's father's death. So प्ले की शुरुआत ही एक डिस्कशन के साथ होती है. इट ओपन्स विद डिस्कसिंग Maria's impending marriage and her distress over her father Van Rogge's decision about this marriage. Billy Dimple's father was once Van Rogge's business partner and a good friend, and before his death the marriage was already decided. However, Maria is not happy with this marriage. She finds this person, Billy Dimple, to be very snobbish, and she is the one who is very intellectual and finds a refuge in books. Books में बहुत ज़्यादा interested है. Billy Dimple का snobbish England behavior Maria को पसंद नहीं आता. Maria is too much focused on books and morality as opposed to fashion and men. Dimple is shown to be a person not of a great character. He is also secretly making marriage plans with the flirtatious Charlotte Manley and Letitia. दो और गर्ल्स के साथ वो simultaneously involved हैं, something which is not known to any of these girls. Second scene में देखिए क्या होता है. In the second scene, Maria reflects on the limitations faced by women and the importance of reputation. मरिया कंटेम्पलेट करती हैं कि किस तरीके से फीमेल्स के साथ एक तरीके की लिमिटेशन होती है टू टेक डिसीजंस. Despite confessing her lack of affection for Dimple to her father, the father insists कि शादी तो इसी से ही होगी because this is needed for our business and this marriage is needed for money purposes also. He dismisses Maria's
फीलिंग्स, कि तुम्हारी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है. दिस इज मोस्ट प्रोबेबली योर रीडिंग हैबिट्स जिसकी वजह से तुम्हें ये डिसकंटेंट फील हो रहा है. अदरवाइज बिली डिम्पल इज अ परफेक्ट एलिजिबल पर्सन. एक्ट 2 में अब हमारे एक कैरेक्टर ऐड होते हैं, कर्नल हेनरी मैनली. Act 2 introduces Colonel Manley, a very respected war veteran dressed in outdated military attire, who this person contrasts with the fashionable society of the city. और फैशन में मारिया को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था. शार्लेट एंड लेटिटा एक दूसरे से बात करते हैं, कन्फाइड इन ईच अदर दैट दे आर बोथ कोर्टेड बाय सम पर्सन विदाउट गिविंग ईच अदर अ हिंट दैट द पर्सन इज सेम. तो ये दोनों ही फीमेल्स एक दूसरे के साथ अपने लवर का डिस्कशन कर रही हैं और ये किसी को भी नहीं पता चलता है कि दैट लवर इज एक्चुअली सेम. मीनवाइल जेसिमी नाम का एक कैरेक्टर है जो कि डिम्पल का सर्वेंट है. जेसिमी, अ स्नॉब यू कैन से, इंट्रोड्यूसेस जोनाथन जो कि मैनली का सर्वेंट है. जोनाथन काफ़ी इनोसेंट कंट्री मैन है. उनको सिटी लाइफ दिखाते हैं, सिटी में किस तरीके से लोग किस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं. करेजेस encourages him to have relationship with city girls and to apply fashion in his life. रेस्टोरेशन कॉमेडीज में जनरली ऐसा होता था, जो लाइफ मास्टर जी रहे होते थे उसी तरीके की एक पैरेलल लाइफ सर्वेंट्स की भी दिखाई जाती थी. तो यहाँ पर भी वही लाइफ, जिस तरीके की लाइफ बिली डिम्पल जीना चाहते हैं, कोटिंग सो मेनी गर्ल्स एट द सिमिलर पॉइंट ऑफ टाइम, वही सब कुछ जेसिमी कर रहे हैं. और जेसिमी वही सब कुछ मैनली के सर्वेंट को सिखा भी रहे हैं, जॉनथन को. थर्ड सीन में बिली डिम्पल इज ट्राइंग टू कोट बोथ ऑफ दीज गर्ल्स. शैर्लोट को भी अपनी फीलिंग बताते हैं और लेटिटिया को भी अपनी फीलिंग बताते हैं, और मोटिव है उनका मनी रादर देन एनी सॉर्ट ऑफ अफेक्शन. He also seeks to dissuade Maria from their engagement, and Dimple encounters Colonel Manley. Dimple को कर्नल मैनली भी मिलते हैं, who is Charlotte's brother. Charlotte जिसको वो ऑलरेडी कोट कर रहे हैं for money purpose, not for the love purpose. So Dimple encounters Colonel Manley, who is Charlotte's brother, just in time to prevent revealing his derogatory views on women. Dimple boasts of his admiration for European culture despite living in America. तो डिम्पल रहते हैं अमेरिका में लेकिन ब्रिटिश कल्चर अडॉप्ट करना चाहते हैं, और कर्नल मैनली से भी ब्रिटिश कल्चर और ब्रिटिश कल्चर के हाई प्रोफाइल की बातें करते हैं. ब्रिटिश कल्चर को लेकर जो उनका एक प्राइड व्यू पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं. एंड ही ऑल्सो टेल्स अबाउट हिज डेरोगेटरी व्यू पॉइंट्स ऑन विमेन विद कर्नल मैनली. एक्ट 4 में हमें दिखाया गया है कि मरिया अपनी कुछ फीलिंग्स को कन्फेस कर रही है, शैर्लेट से बात कर रही है. मरिया कन्फाइड इन शैर्लेट अबाउट हर एवर्जन टू डिम्पल, यानी कि डिसलाइकिंग टू डिम्पल, एंड एडमायरेशन फॉर कर्नल हेनरी मैनली. उनके ऑनर की तारीफ करती हैं. शैर्लेट जो कि इंटरेस्टेड है डिम्पल में एट प्रेजेंट, शी ऑल्सो ट्राइज टू परसुएड मरिया टू ब्रेक ऑफ हर एंगेजमेंट, क्योंकि Charlotte is the one who wants to get involved with Billy Dimple, but at present Maria is engaged to him. Family relationship reveal होती है धीरे धीरे when Manly and Dimple enter. तब पता चलता है कि Manly is the brother of Charlotte. When Rock भी डिस्कवर करते हैं कि Dimple is not such a good person as I used to think. काफ़ी कर्जे हैं उनके ऊपर, काफ़ी डेट्स में रहते हैं और गैम्बलिंग करते हैं. So he decides against the marriage. उनको लगता है कि मेरी बेटी का फ्यूचर इसके साथ अच्छा नहीं रहेगा. ही इवन ओवरहियर्स मैनली एंड मरिया प्रोफेसिंग देयर लव फॉर ईच अदर. तो उनको पता चलता है कि मरिया और मैनली एक्चुअली मेड फॉर ईच अदर हैं, दे आर द वन हु शुड बी गेटिंग मैरिड टू ईच अदर. अब आ जाता है हमारा एक्ट 5. एक्ट 5 में जेसिमी की थोड़ी बात की गई. जेसिमी जो कि डिम्पल के सर्वेंट है. Jessamy fails to teach high society rules of laughing to Jonathan. Jessamy Jonathan को सिखा रहे हैं कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी हंसती किस तरीके से. एक तरीके से सटायर कहा गया है यहाँ पर कि हंसना भी अलग से सिखाया जा रहा है. पीपल आर नॉट सपोज टू लाफ नेचुरली. तो जेसिमी जॉनथन को कहते हैं कि तुम तो नेचुरल हंसी हंसते हो, एक स्टाइलिस्टिक हंसी होनी चाहिए हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लिए. इन अ मीनवाइल डिम्पल मीट्स लेटिटिया, telling her that he loves just her and that Charlotte is nothing else than a
फ्लाइटली कॉकेट पर्सन। तो लेटिटिया को कहते हैं कि शैरलेट तो बहुत ही फ्लर्टेशियस है, आई एम इन लव विद यू। At the same point of time, Charlotte enters and Letitia pretends to leave. She observes the following happenings. After Letitia seemed to be gone, सबको लगता है कि लेटिटिया चली गई है। अब डिम्पल शार्लेट से बात करते हैं, शार्लेट को बताते हैं कि ही इज़ इन लव विद हर। मैं तो सिर्फ शार्लेट यानी कि तुमसे प्यार करता हूँ। लेटिटिया, शी इज़ एन अगली क्रीचर। When Dimple forcefully tries to kiss Charlotte, Charlotte screams and Manly comes in to help her. अपनी सिस्टर को हेल्प करने के लिए आते हैं। ओल्ड वैन रॉ प्रिवेंट्स द मेन फ्रॉम स्टैबिंग ईच अदर। इन दोनों की इतनी फाइट हो जाती है कि दोनों एक दूसरे को स्टैब करने लग जाते हैं और उस स्टैबिंग से इनको बचाते हैं वैन रॉ। लेटिटिया एंटर्स टू रिवील द हैपनिंग्स टू एवरीवन। लेटिटिया यहीं सुनकर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। नाउ शी कम्स टू नो कि व्हेन ही इज़ विद मी, व्हेन बिली डिम्पल इज़ विद मी, तो मेरे साथ फ्लर्ट करते हैं। व्हेन ही इज़ विद शार्लेट, तो वो उसके साथ फ्लर्ट करते हैं, राइट। तो लेटिटिया आकर सारी बातें सबको बता देती हैं। ओल्ड वेनरो प्रिवेंट्स द मेन फ्रॉम स्टैबिंग ईच अदर, और लेटिटिया सबको सब कुछ बता देती है। आफ्टर डिम्पल इज गॉन डिसऑनर्ड, वेनरो अग्रीज to Manly's marriage proposal and Maria ends up with Manly. तो बिली डिम्पल का राज सबके सामने खुल जाता है कि he is not as good as he has been portraying, and when Raw really agrees for the union of Maria and Colonel Manly. अब हम थीम की बात करें तो दो थीम्स हैं यहाँ पर, वन इज पेट्रियोटिज्म एंड इंडिपेंडेंस। वी विल टॉक अबाउट वन मोर थीम। कर्नल मेनली सेंट्रल अमेरिकन कैरेक्टर हैं जो कि पेट्रियोटिक वैल्यूज, पेट्रियोटिक वर्च्यूज कैरी करते हैं अपने साथ इन द न्यू फॉर्म्ड अमेरिकन नेशन। अमेरिका 13 कॉलोनी से धीरे धीरे एक्सपैंड होकर बना था, दैट ऑल ऑफ अस नो। हिज कैरेक्टर, मेनलीज कैरेक्टर बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं कमिटमेंट टू इंडिपेंडेंस, बोथ पॉलिटिकली एंड कल्चरली। लेकिन कुछ लोग यूरोप को ही एपिटमे मानते थे, यूरोप को ही बेंचमार्क मानते थे, उनका रिप्रेजेंटेशन बिली डिम्पल के थ्रू करवाया गया है। लेकिन कुछ लोग अमेरिका में रहते हुए अमेरिका के लिए ही पेट्रियोटिक हैं, जिनका रिप्रेजेंटेशन कर्नल हेनरी मेनली के थ्रू करवाया गया है। सो दिस इज बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन यूरोपियन स्टैंडर्ड्स एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड्स। जो कैरेक्टर है मेनली का, वो रिप्रेजेंट करता है कमिटमेंट फॉर इंडिपेंडेंस पॉलिटिकली कल्चरली फ्रॉम यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस, while also showcasing the challenges and rewards for maintaining individual integrity and national pride. ऐसे ही लोग रहे होंगे जिनकी वजह से today we can call that America is a superpower. This play also talks about national identity. ये play explore करता है what it means to be American versus British. This is British, this is American. इन दो लोगों का comparison है basically ये play. इनके social behavior का, इनकी values का, इनके national character का. It celebrates American virtues such as sincerity, honesty, independence, contrasting them with perceived British superficiality. तो ब्रिटिश वर्च्यूज, सो कॉल्ड ब्रिटिश वर्च्यूज को सुपरफिशियलिटी दिखाया गया है, प्रिटेंशियसनेस दिखाया गया है, और एक ब्रिटिश पर्सन को फुल ऑफ मटीरियलिज्म दिखाया गया है। अब आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई दिस प्ले इज अ फार्स। फार्स के बारे में समझेंगे पहले, मैं आपको अलग से पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करूंगी सभी क्वेश्चन आंसर्स के लिए, किस तरीके से आप वो ग्रैब कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। फार्स ग्रेजुअली इमर्ज्ड as its own theatre in France, यूरोप कह सकते हैं आप, in 15th century and in England in 16th century. In the late 16th century शेक्सपियर ने भी लिखे थे फार्स, जिसमें से कि एक बहुत पॉपुलर फार्स है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, जो कि उन्होंने एक ओल्ड प्ले ब्रदर मेनेकमस प्लॉटस का प्ले था उससे इंस्पायर होकर लिखा था। फार्स क्या होता है? एक कॉमेडी दैट सीक्स टू एंटरटेन एन ऑडियंस थ्रू सिचुएशंस दैट आर हाईली एग्जैजरेटेड, ये वर्ड आपको ज़रूर लिखना है, रिडिकुलस, अब्सर्ड, इम्प्रोबेबल, सोसाइटी को कहीं ना कहीं रिवील करती हैं, सोसाइटी के स्नॉबिश मैनर्स को रिवील करती हैं और एग्जैजरेटेड वे में करती हैं। दैट इज़ व्हाट वी कॉल टू बी अ फार्स। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टर एग्जैजरेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग,
फिजिकल कॉमेडी सटारिकल ह्यूमर जो कि कॉन्ट्रास्ट को एक फार्स बनाते हैं, एग्जैजरेटेड कैरेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। डिम्पल जो कि ऑब्सेस्ड हैं सुपरफिशियलिटी से और फैशन से। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं, सेम पर्सन इज कोटिंग 2 to 3 फीमेल्स और उन फीमेल्स को पता ही नहीं है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं कैरेक्टर्स के बीच में, एंड दैट इज मेजरली ड्यू टू द कल्चरल डिफरेंसेस। फिजिकल कॉमेडी है, while not central, there are instances of physical comedy, slapstick elements हैं, especially in scenes involving misunderstanding और awkward social situation। तो ये सब कुछ प्रेजेंट है कॉन्ट्रास्ट में। सोसाइटी के लिए एक ह्यूमर तो है ही कि इट इज़ नॉट ओके टू बी प्रिटेंशियस, जैसे कि एक सर्वेंट दूसरे सर्वेंट को लाफिंग के मैनर्स भी सिखा रहे हैं, तो दैट इज अ सटारिकल ह्यूमर। मॉक किया गया सोसाइटल नॉर्म्स को और सोसाइटल बिहेवियर्स को। लाइव क्लासेस के लिए बहुत डिमांड्स आ रही हैं, लेकिन एट प्रेजेंट लाइव क्लासेस पॉसिबल नहीं है, एग्जाम्स चल ही रहे हैं, एक सब्जेक्ट को कवर करने में काफ़ी मेहनत लगती है। हाउएवर फ्यू सैम्पल पीडीएफ्स आर अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, यू कैन जॉइन इट और अपने इनमें से जो टॉपिक्स मैंने यहाँ मेंशन किए, इफ़ यू वांट टू बाय द फुल पीडीएफ यू कैन कनेक्ट एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन दिस चैनल। तो पहले आप इस चैनल को ज्वाइन करिए, यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, जो भी पीडीएफ्स प्रोवाइड की जा रही हैं कंटिन्यूसली। सैम्पल पीडीएफ देखिए पहले एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर यू आर रेडी टू गो फॉर द फुल पीडीएफ और नॉट। लाइव सेशंस के लिए सबसे ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, लेकिन लाइव सेशन अभी के एग्ज़ाम के लिए नहीं चल रही हैं, जुलाई से स्टार्ट होंगी दिसंबर के लिए। तो अगर आप लाइव सेशंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कनेक्ट स्पेसिफिकली बाय जून एंड। बिल्कुल एग्ज़ाम के टाइम पर जब आप लोग लाइव क्लासेस के लिए बोलते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि दैट विल बी वेरी हेस्ट एंड हेस्ट इज समथिंग विच मेक्स अ वेस्ट। तो अगर आप लाइव क्लासेस कर रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, तो इस तरीके से करिए कि बड़े आराम से और डिटेल स्टडी कर पाएँ रादर देन गोइंग इन हरी। A great good luck for the ongoing exams and a great good luck for your next December exams also, आप में से जो भी दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं।